first basic concept which we are going to discuss here is goods. You know what are goods? Goods and services, these are purchased for the satisfaction of human wants. Now, for the national income viewpoint, we classify goods into two broad categories, final goods and intermediate goods. But final goods are those goods which have crossed boundary line of production. To cross boundary line of production means there is no scope of value addition to these goods, which means these goods are now ready to be used by the final users. Okay, final users can be consumers, final users can be producers. So these are the goods which are not to be used as raw material and which are not used for रीसेल पर्पस. ठीक है, तो ये गुड्स जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं. कैसे पता चलेगा बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं? इनके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन का स्कोप नहीं है, यानी इसको ना तो रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाएगा और ना ही इसको हम रीसेल करेंगे, क्योंकि इन दोनों से जब भी हम किसी कमोडिटी को, किसी गुड को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसमें वैल्यू एडिशन होती है. सिमिलरली जब हम उसको रीसेल करते हैं तो भी उसमें वैल्यू एडिशन होती है. ठीक है, so these are those goods which are ready to be used by the final users, right? So this is how we define final goods. Then intermediate goods are those goods which are within the boundary line of production in which value addition is to take place, which are not ready to be used by the final users and which can be used either as raw material or it can be used for resale, right? Within the boundary line of production, value addition is to take place. These are not ready to be used by the final users, so they are simply being used either as the raw material or for resale purpose, right? Now to create difference, to make a distinction between final and intermediate good is very, very important. Reason being, while estimating national income, only final goods, value of final goods is to be taken into consideration, right? So let's see what are the various types of final goods and what is the difference between final and intermediate good. So difference kar lete hain. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production. Intermediate goods are those which are within the boundary line of production. No value addition is to take place on the final goods. They are ready to be used. Whereas value addition is yet to take place. They are not ready to be used by the final users. Final goods are not to be used as raw material or for resale purpose. Whereas intermediate goods are either to be used as raw material or for resale. Then, while estimating national income, final goods, the value of final goods is to be taken into consideration, whereas while estimating national income, value of intermediate goods is not to be taken into consideration. Then last, you can give example. बेटे कोई भी आप example दे सकते हो, लेकिन that any good, आपको ये भी मालूम है कि any good can be final good as well as intermediate good. सेम गुड किसी पर्सन के लिए या किसी फर्म के लिए फाइनल हो सकता है, दूसरी फर्म के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमने एग्जांपल देनी है, हमने बताना है कि ये गुड किसने खरीदा. फॉर एग्जांपल मार्कर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, या मिल्क है,
कोई भी एनीथिंग विच इज परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड इज अ फाइनल गुड. ठीक है. वेयर एज any commodity which is being used by firm for resale purpose, say laptop purchased by dealer for resale, that is an intermediate good. ठीक है. So from this discussion we come to know that same good can be classified as a final good or an intermediate good. It depends upon the end use of the good. कोई भी गुड है उसको आपने ये जानना है क्या वो फाइनल गुड है, क्योंकि इसकी डिस्टिंक्शन मैंने पहले ही बताया बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर हमने नेशनल इनकम एस्टिमेट करनी है हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना है. अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स भी ले लिए तो इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. ठीक है. सो हाउ टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड? इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज. So if the end use is consumption, that is it is being used by household for the direct satisfaction of wants, then it is a final good. On the other hand, if the end use is investment, that is it is being used by the producer for further production, even then it is a final good. On the other hand, if it is being used by the producer for resale, then it is an intermediate good. And if it is used by the producer for reprocessing, or you can say as raw material, again it is an intermediate good. ठीक है. तो जब भी बेटे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या आपको ये देखना है कि क्या ये गिवन गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट गुड है, आप देखिए क्या ये रीसेल के लिए यूज हो रहा है. रीसेल के लिए नहीं हो रहा. देखो ये एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है. अगर दोनों आर में से कुछ नहीं है तो वो फाइनल गुड है, अदरवाइज इट इज एन इंटरमीडिएट गुड. क्लियर. सो कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है और हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो फाइनल गुड है. इन्वेस्टमेंट यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, इवन देन इट इज अ फाइनल गुड. अगर प्रोड्यूसर रीसेल के लिए या एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है देन इट इज एन इंटरमीडिएट good. So let's see what are the various types of final goods. Better final goods are further classified into two types of goods. One, final consumer goods. Final consumer goods कौन से होते हैं? Final consumer goods वो होते हैं which are purchased by the household for the direct satisfaction of their wants. ये वो गुड्स हैं जो कि हाउस होल्ड या कंज्यूमर खरीदते हैं फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स. ठीक है. इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कह देते हैं. दूसरे टाइप ऑफ फाइनल गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटे जो कि प्रोड्यूसर खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग. ठीक है. टूल्स, फार्मर ट्रैक्टर खरीदता है. ये सारी टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मशीनरी खरीदती है. ये प्रोड्यूसर हैं. ये क्यों गुड्स खरीद रहे हैं या टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं? फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. ना तो इन्होंने रीसेल करना है अपनी मशीनरी को और ना ही उसको फर्दर रीप्रोसेस करना है, तो उनके गुड्स जो हो गए वो क्या कहलाएंगे? फाइनल गुड. तो कैपिटल गुड्स के ऊपर जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है बेटे उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो वी कैन से कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होता है it is sum total of consumption expenditure and investment expenditure.
सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। क्लियर हो गया बेटे? सो इंटरमीडिएट गुड्स एज सच कोई इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. इट कुड बी रॉ मटेरियल, इट कुड बी फाइनल गुड्स बीइंग यूज्ड फॉर रीसेल. So you can give any example. यहाँ तक क्लियर है बेटे? So because now we have studied that final goods can be classified into two broad categories, consumer goods and capital goods. So let's see what are consumer goods. Consumer goods which are purchased by the households for the direct satisfaction of their wants. We all are household better. So whatever goods we consume, these are consumer goods. Now we consume thousands of goods in our daily life. So we classify them into four broad categories, which are durable goods, which are used for long period of time, say car, refrigerator, washing machine. Now semi-durable goods, which are used for less than say 1 year. For example, electronics, clothes. Then non-durable goods, which are also called as perishable goods, which are consumed in a single go, which gets used up in the process of consumption. For example, petrol, fruits, vegetables, right? And last is services, intangible goods, invisible goods, which we consume for the satisfaction of our wants. Right now, you are consuming the services of a teacher, you are consuming Wi-Fi services, right? So all these we consume in our daily life. These are consumed by the household. So these are known as consumer goods. ठीक है, क्योंकि ये फर्दर ना एज अ रॉ मटेरियल यूज होने हैं, ना ही इसको हम रीप्रोसेस करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज फाइनल गुड्स. दूसरी तरह के फाइनल गुड्स हैं बेटे कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? These are purchased by the producer for further production. प्रोड्यूसर अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स को नहीं खरीदता. वो किस लिए खरीदता है? क्योंकि उसने आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स बनाने हैं. उन गुड्स को बनाने के लिए वो खरीदता है. सो दीज आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. कैपिटल गुड्स बेटे, अब आप बोलो कि मैम प्रोड्यूसर तो बहुत सारे गुड्स खरीदता है, इसका मतलब सारे गुड्स जो प्रोड्यूसर खरीदता है वो कैपिटल गुड्स हो गए. नो बेटे, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स सिर्फ उन्हीं गुड्स को कहा जाता है, एक जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, दूसरा जो हाईली वैल्यूड होते हैं, महंगे आते हैं, which are considered as the fixed assets of the producer. ठीक है. एक प्रोड्यूसर हैमर भी खरीदता है प्रोडक्शन करने के लिए, बट वो हैमर हम कैपिटल गुड में नहीं लेंगे. है तो प्रोड्यूसर गुड, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है. क्यों? कैपिटल गुड में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स आते हैं जो हाईली वैल्यूड होते हैं, which tend to depreciate over a period of time. ठीक है. which remain for a longer period of time. durable होते हैं. they do not get used up in the process of production. ठीक है. तो ये सारी क्वालिटीज इकट्ठी होनी चाहिए, तभी हम एक गुड को कैपिटल गुड कह सकते हैं. कौन सी? परचेज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ठीक है. हाईली वैल्यूड, कंसिडर्ड एज द फिक्स्ड एसेट. आप बैलेंस शीट में देखो तो फिक्स्ड एसेट में चढ़े होने चाहिए प्रोड्यूसर के. देन दीज टेंड टू डेप्रिशिएट. जो फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रिशिएट होता ही होता है. दीज आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So these are known as capital goods. So why we say that all producer goods are all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. बेटे producer goods जो होते हैं ना, वो जनरली दो क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक होते हैं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, एक होते हैं ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जिनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं. ठीक है.
ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं कहलाते. दीज आर प्रोड्यूसर गुड्स, दीज आर परचेज बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है, बट दीज आर बीइंग यूज्ड एज रॉ मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, आपने आपकी टेक्सटाइल मिल है, कॉटन भी खरीदा, मशीनरी भी खरीदी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कॉटन की क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए आपने एक मशीनरी खरीदी और कॉटन खरीदा. अब ये जो कॉटन है बेटे, ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड है, ये खत्म हो जाएगा जब आप कपड़े में कन्वर्ट कर दोगे इसको, तो इसकी आइडेंटिटी लूज हो जाएगी. वेयर एज मशीनरी की आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, ये सालों साल चलेगी. आप कॉटन लाते रहिए, उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करते जाइए, ठीक है. तो ये एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक हो गई. They do not lose their identity in the process of production. कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, ठीक है. तो जो रॉ मटेरियल की तरह यूज हो गए, वो प्रोड्यूसर गुड तो है, वो कैपिटल गुड नहीं है. लेकिन जो ड्यूरेबल यूज गुड्स हैं, जिनको हम फिक्स्ड एसेट मानते हैं, जिनकी डेप्रिसिएशन होती है, जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, these are known as capital goods, and these capital goods are producer good, ठीक है. all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital good, because raw material single use producer goods are not capital goods. इनको हम क्या कहते हैं? intermediate goods, ठीक है. These are known as intermediate goods. So we can again create difference amongst consumer and capital goods used by the consumers for the direct satisfaction of wants, used by the producers for further production. These directly satisfy human wants, they have direct demand. These indirectly satisfy human wants, so they have derived demand. Then better, these are used for consumption, these are used for investment. इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है. And then another point of difference, these do not impact productivity, इनसे productivity नहीं affect होती, whereas these tend to raise productivity. आप घर में चाहे जितनी मर्जी कार ले आओ, वॉशिंग मशीन ले आओ, कपड़े ले आओ, ठीक है, लैपटॉप ले आओ, उससे आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी. लेकिन जब एक प्रोड्यूसर ये चीजें लेके आता है, कार खरीदता है टैक्सी डालने के लिए, या फिर वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है रेस्टोरेंट में रखने के लिए, ठीक है, ऐसी चीजें जब एक प्रोड्यूसर लेके आता है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है. तो कंज्यूमर गुड्स डू नॉट इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, whereas capital goods have the tendency to raise productivity of the economy. क्लियर बेटे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यू कैन आस्क. Can anyone tell me how to create a difference between consumer and capital goods? Same good can be classified as consumer or capital good. It depends upon the end user. उसका एंड यूजर कौन है, ठीक है. अगर एंड यूजर हाउस होल्ड है बेटे, तो ये कंज्यूमर गुड हो गया. अगर एंड यूजर प्रोड्यूसर है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो ये कैपिटल गुड हो गया. अब आप बोलोगे कि मैम कंज्यूमर और कैपिटल अलग अलग गुड्स ही खरीदते हैं, तो ये तो पता चल ही जाएगा. सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. से स्विंग मशीन, कपड़े सिलने वाली मशीन, आपके अगर मदर लेके आए घर में आपकी यूनिफॉर्म वगैरह ठीक करने के लिए, ठीक है, तो ये कौन सा गुड होगा? कंज्यूमर गुड. ऑन दी अदर हैंड, अगर एक टेलर ने खरीदी कपड़े स्टिच करने के लिए, सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो सेम सोइंग मशीन विल बी कॉल्ड एज कैपिटल गुड, ठीक है. और टैक्स कार, आपने हाउस होल्ड ने खरीदी कार, आपने खरीदी कार, तो ये कंज्यूमर गुड होगी, ठीक है. लेकिन अगर किसी की टैक्सी है, टैक्सी चला सर्विस है, टैक्सी चलाते हैं,
तो उन्होंने उनके पास 8 कारें थी, उन्होंने एक और खरीदी, ठीक है। अब ये कार जो उन्होंने खरीदी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज खरीदी है, दैट विल बी क्लासिफाइड एज कैपिटल गुड, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स। बेटे उस केस में मशीन से हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन, बच्चों को क्या, सबको ये लगता है मशीन से हमारा मतलब वो होता है कि बड़ी बड़ी मशीनरी जो फैक्ट्रीज में यूज होती हैं। बेटे इवन रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन, कार इज ऑल्सो अ मशीन, दिस स्विंग मशीन ये भी तो मशीन ही है, मशीन लगा है ना वर्ड। तो जहां पर मैकेनिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, कन्वर्जन हो रही है किसी भी एनर्जी की, वो मशीन है, वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये चीजें जब हम घर में लेके आते हैं, हाउस होल्ड यूज करता है, तो वो कंज्यूमर है। अगर वो उसको कोई फर्म या प्रोड्यूसिंग यूनिट यूज करता है तो वो कैपिटल गुड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर मशीनरी कैपिटल गुड है। If that machinery is used by the household for the direct satisfaction of want, it will be classified as consumer good. You can give number of examples like microwave, refrigerator, washing machine, car, sewing machine, ठीक है। All these will be called as consumer goods if these are purchased by the household, ठीक है। So next concept है हमारा बेटे depreciation or consumption of fixed capital. What is depreciation? Depreciation implies fall in the value of fixed asset. Fall in the value of fixed asset due to number one, normal wear and tear, ठीक है। जब आप एसेट को यूज करते हैं उसकी वेयर एंड टीयर होती ही है। सेकेंडली विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एसेट की वैल्यू कम होती है। थर्डली ड्यू टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस, विद टाइम नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, और पुरानी जो है वो ऑब्सोलीट हो जाती है। तो वो जितना हमें एक्सपेक्टेड है कि हाँ इतनी वैल्यूज की ऑब्सोलेंस के कारण कम होगी, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इट्स अनदर नेम इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट जो है बेटे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सो सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आनी है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस नहीं आनी। इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कह देते हैं। नाउ डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस। ये जो वैल्यू है ये हम फोरसी कर सकते हैं, तो हमने इसको डेप्रिसिएशन कह दिया या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कह दिया। दूसरा होता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस, लॉस का मतलब भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट है, बट इट इज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस और these natural calamities, एक्सीडेंट्स, थेफ्ट्स, इनके कारण जब भी वैल्यू में कमी आती है कैपिटल एसेट की, इसको कैपिटल लॉस कहा जाता है, ठीक है। अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को क्योंकि हम फोर्सी कर लेते हैं तो इसके कारण हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुकता नहीं है, लेकिन कैपिटल लॉस के कारण हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है। इसके लिए हम प्रोविजन मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन इसके लिए हम कोई प्रोविजन मेंटेन करके नहीं रखते हैं। हाँ, हम इंश्योरेंस जरूर करा सकते हैं अपने कैपिटल एसेट्स की अगेंस्ट दीज लॉसेस, बट अदर देन दैट no insurance, no provision is maintained.